اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو اور نشست جاری ہے اور اس نشست میں ابھی تک ہم نے کچھ سوالات انصر رضا صاحب کے سامنے رکھے ہیں اور ان سوالوں کا جواب ہم نے ان سے لیا ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا۔ انصر صاحب ہم نے یہ بات تو کر ہی لی ہے کہ کس طرح آپ نے جو بتایا کہ نبوت اور رسالت دو الگ الگ منصب ہیں یا نہیں، اور اب ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی روح سے یہ سوال میرا آپ کے ساتھ ہے کہ قرآن مجید کی روح سے کسی عقیدے کے اوپر نہیں یا اپنی فرضی بات پر نہیں، قرآن مجید کی روح سے کیا ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو کب اور کیوں مبعوث کرتا ہے؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ کنڈیشنز بتائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، وہ وجوہات ہمارے سامنے رکھی ہیں جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث کرتا ہے؟ جی سبھی بھائی، وہ آیات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ وجوہات اور وہ حالات جو قرآن کریم نے انبیاء کی بعثت کے لیے بتائے ہیں کہ یہ وجوہات ہوتی ہیں، یہ حالات ہوتے ہیں، تب میں اپنا رسول بھیجتا ہوں جو نبی بھی ہوتا ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ یہ تمام وجوہات اور وہ تمام حالات آج مسلمانوں پر خاص طور پر اور پوری دنیا میں عموماً وارد ہو چکے ہیں۔ تو اگر وہ تمام وجوہات اور وہ تمام حالات موجود ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نبی نہیں آئے گا اس کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پہلے بھی نہیں آیا کبھی۔ یہ جو کنکلوژن اس کا نکلے گا نا، اگر آج آپ نبوت کا انکار کریں گے اور وہ وجوہات اور وہ حالات میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھوں گا، بہت سے ہیں، میں نے صرف چند منتخب کیے ہیں ورنہ ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آج سے پہلے بھی کبھی نبی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وجوہات ہوتی تھیں، یہ حالات ہوتے تھے تو میں نبی بھیجا کرتا تھا۔ آج بھی وہ حالات ہیں، آج بھی وہ وجوہات ہیں، پھر آج کیوں نہیں بھیجتا؟ ایک شعر یاد آ گیا، جی وہ کہتے ہیں ہر ایک تیرگی میں تو نے اتاری ہے روشنی، اب خود اتر کے آ کے سیاہ تر ہے کائنات۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا سورہ 62 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 3۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ جمعہ کی مشہور شروع کی جی آیات میں۔ جی، تو جب لوگ ضلال مبین کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول مبعوث کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ الانعام جو 6 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 75۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کالا ابراہیم ہو، جب کہا ابراہیم نے لے ابھی ہے اپنے باپ کو آزرا جو آزر تھا، اتتخذوا اصناما آلہۃ، کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ انی اراکا و قومکا، میں یقیناً دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو فی ضلال مبین، کھلی کھلی گمراہی میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت انبیاء کو بھیجتا ہے جب لوگ کھلی کھلی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، اس میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 ہے، فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ میں نے پہلے بھی پڑھی ہے جی کہ نبوت اللہ کا احسان ہے، لیکن اب میں اس کا آخری حصہ جو نا اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان کیا مومنین پر، اذ بعث فیہم، جب مبعوث کیا ان میں، رسول من انفسہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر تلاوت کرتا ہے آیات، اس کی آیات کی، یعنی اللہ کی آیات، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ کون تھے؟ مومنین۔ یہ بالکل ہاں جی، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے، اور وہ مومنین تھے مومنین، لیکن وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ تو مومنین بھی کھلی کھلی گمراہی میں ہوں اور پھر بھی اللہ مبعوث نہ کر لیتا، تو کہتا ہے میں مبعوث کرتا ہوں اور بطور احسان کے کرتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو آپ کا احسان نہیں چاہیے۔
ये तो एक बात है। दूसरी बात अल्लाह ताला ने ये फरमाई है, सूरत नंबर है 57, आयत नंबर है 17 और इसमें अल्लाह ताला ने बताया कि जब नज़ूल किताब पर तवील मुद्दत के बाद लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला एक शख्स को मबूस करता है। फरमाया, अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी तक ईमान वालों पर वक्त नहीं आया कि उनके दिल जो है वो लरज उठे लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, वमा नज़ला मिनल हक़, और जो भी हक़ के साथ नाजिल हुआ है, वला यकूनु कल्लज़ीना, और उन लोगों की तरह तुम वो मत हो जाए, ऊतुल किताबा मिन क़ब्लो, जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, फ़ताला अलैहिमुल अमदो, और फिर उन पर एक मुद्दत लंबी हो गई, फ़कसत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए, व कसीरुम मिनहुम फ़ासिकून, और उनमें से अक्सर फासिक थे। अगली आयत में फरमाया, एलमू, जान लो, अन्नल्लाह युहिल अर्दा बादा मौतिहा कद बय्यना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून, जान लो कि अल्लाह ताला ज़मीन को उसकी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करता है, और तुम्हें हम जो है आयात खोल खोल कर बयान कर चुके हैं ताकि तुम अकल करो, लेकिन ये अकल ही नहीं करते। अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि जब किताब नाज़िल होती है उसके बाद एक लंबी मुद्दत गुजर जाती है, फ़ताला अलैहिमुल अमद फ़कसत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए, व कसीरुम मिनहुम फ़ासिकून, क्या इस वक्त ये मुसलमानों पर ये हालत तारी नहीं हो रही या हो चुकी है कि किताब पर एक मुद्दत गुजर गई है, इनके दिल सख्त हो गए हैं, इनमें से अक्सरियत फासिक हो चुकी है। तो खुदा ने मिसाल क्या दी है कि जब ज़मीन के ऊपर बारिश को एक लंबा अरसा गुजर जाए तो ज़मीन सख्त हो जाती है, फट जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी कि एलमु, जान लो, अन्नल्लाह युहिल अर्दा बादा मौतिहा, कि अल्लाह ताला यकीनन ज़मीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है, और हम तुमको आयात खोल खोल कर बयान करते हैं, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल करो। तो फिर भी अकल नहीं करते, कहते नहीं जी वो तो अब जो है वो अल्लाह रसूल नहीं भेजेगा कोई। तो ये जो दो मैंने आपके सामने रखी हैं, ज़लाल मुबीन और दिलों का सख्त हो जाना, ये है वो हालात जबकि अल्लाह ताला अंबिया को भेजता है। अब क्यों भेजता है ये जी। भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पहली जो 9 नंबर की सूरत है उसकी आयत नंबर 33, अल्लाह ताला फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, वो है ज़ात जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक़ के साथ, ताकि वो इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिकों को कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे। तो ये इज़हार दीन यानी गलबा दीन के लिए। इज़हार का उर्दू में हमारा मतलब है ना कि किसी चीज़ को इज़हार कर देना, लेकिन अरबी ज़ुबान में इसका मतलब है गलबा दे देना। ज़हरान ठीक। कमर को कहते हैं, उसका मतलब ये है कि कोई चीज़ ऐसे सवार हो जाए, पूरी गालिब आ जाए, तो उसको कहते हैं इज़हार। फिर यही आयत जो है वो सूरह फतह में है, 48 नंबर की सूरत है, आयत नंबर है 29, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। इसकी एंडिंग डिफरेंट है, वहाँ था वलौ करिहल मुशरिकून, यहाँ पे है जी। व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ठीक है। तर्जुमा वही है कि इज़हार दीन के लिए अल्लाह ताला रसूल भेजता है, गलबा दीन के लिए। ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं जी अल्लाह को रसूल भेजने की ज़रूरत नहीं है, गामदी साहब कर लेंगे गलबा दीन। या दूसरे मौलवी जो हैं वो कहते हैं हम गलबा दीन कर लेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है रसूल करेगा। वो कहते हैं नहीं जी हम खुद ही कर लेंगे, आप तकलीफ ना करें किसी को भेजने की, हम खुद ही कर लेंगे उसको। और फिर 61 नंबर की सूरत आयत नंबर 10, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। यहाँ भी वही पहले वाली आयत की एंडिंग है, वलौ करिहल मुशरिकून। 3 दफ़ा अल्लाह ने बताया है कि इज़हार दीन के लिए, गलबा दीन के लिए अल्लाह ताला रसूल भेजता है। ये कहते हैं रसूल को भेजने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। तो ये बड़ी एक अजीबो-गरीब सी बात है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि तिलावत आयात तालीम किताब और हिकमत और तज़किया नफ्स के लिए, ये मैंने पहले बताया है, सूरह बकरा की आयत नंबर 130 है। जी। उसमें ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, और कुरान करीम का एक-एक लफ्ज़ पुरहिकमत है। हज़रत इब्राहीम दुआ क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन, ए हमारे रब मबूस कर एक रसूल मिनहुम, इनमें से यानी मक्का वालों में, जब उन्होंने वो खाना काबा की तामीर नौ की है, तो रसूल मबूस कर इनके अंदर, यतलू अलैहिम आयातिका,
जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इनको किताब और हिकमत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया नफ्स करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ये यकीनन तू नहायत ही कामिल गलबे वाला और हिकमत वाला है। अब अगर ये काम कोई और कर सकता, तिलावत आयात, तालीम किताब और हिकमत और तज़किया नफ्स, तो वो ये क्यों कहते कि अल्लाह ताला रसूल भेज दे? किसी को भी खड़ा कर देता अल्लाह ताला, या किसी को भी दिल में डाल देता कि तुम इनको ये काम करो, या कोई बंदा खुद ही कह देता कि मैं करता हूँ तिलावत आयात। हुँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला एक रसूल मबूस कर ये तीनों काम करे। फिर सूरह बकरा ही की आयत में 152 नंबर आयत है, फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलन, जैसा कि हमने रसूल भेजा तुम्हारे अंदर, मिनकुम तुम में से, यतलू अलैकुम आयातिना, वो तिलावत करता है हमारी आयात की तुम पर, वही ज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया नफ्स करता है, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और वो तुमको किताब और हिकमत की तालीम देता है, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और तुमको उस बात की तालीम देता है जो तुम्हें पहले इल्म नहीं था जिसका। और वो जो पहले मैंने आपको बताई है आयत सूरह जुमा की, जी। वो तो यही बात है, यतलू अलैहिम आयाति वाली, तो 3 दफ़ा ये भी आयत आई है। फिर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो रसूल होते हैं वो मुबश्शिर और मुनज़िर होते हैं, जैसे कि उन्होंने भी वो आयत पढ़ी थी, जी, पढ़ी थी। लेकिन ये दूसरी आयत है। ये सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 49 है, वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, और हम नहीं भेजते पैगंबर मगर मुबश्शिर बनाकर, यानी खुशखबरी देने वाला, और मुनज़िर और डराने वाला। फमन आमना वस्ला फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और जो कोई भी ईमान ले आए और अपनी इस्लाह करे तो उसको कोई खौफ नहीं और उसको कोई गम नहीं। फिर फरमाया सूरत नंबर है 79, आयत नंबर 18, सरकशी दूर करने के लिए अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाता है, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरौन की तरफ जा क्योंकि वो सरकश हो गया है। तो सरकशी दूर करने के लिए भी अल्लाह ताला अंबिया को भेजता है। फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त आयत है सूरह इब्राहीम की, जो दूसरी आयत है बिस्मिल्लाह के बाद, फरमाया अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका, जो किताब, ये किताब एक है जो हमने नाज़िल किया है उसको, इलैका, आपकी तरफ, लितुख़रिजन नासा, ताकि आप निकालें लोगों को, मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ, बेइज़्न रब्बिहिम, उनके रब के इज़्न से, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, अज़ीज़ और हमीद रब के रास्ते की तरफ। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि ये कहते हैं जी किताब हमारे पास है, हुँ। हम खुद ही पढ़ेंगे हिदायत पा जाएँगे। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास, तुखरिजन नास, ठीक है। ताकि आप निकालें। ये नहीं कहा कि ये किताब निकालेगी। अगर किताब निकाल सकती होती तो अल्लाह ताला ये 2 नुक्ते ते के ऊपर डालने के बजाय ये कि 2 नुक्ते नीचे डाल नीचे देता। डाल देता है, लियुख़रिजा कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता किताबुन अंज़लनाहु इलैका लियुख़रिजन नासा, नहीं, यानी आप तो फौत हो ही जाएँगे लेकिन किताब तो वही वही रहेगी ना, ये निकाल लेगी खुद ही। लेकिन किताब निकाल नहीं सकती ना। ये और भी लंबी बहस है, हम इस वक़्त उसके मुतहम्मिल नहीं है, कितना वक़्त नहीं है। और फिर सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द अरसलना मूसा, और हमने मूसा को भेजा, बेआयातिना, अपनी निशानियों के साथ, अन अखरिज कौमका, के निकाल अपनी कौम को, मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ। यानी नबी निकालता है किताब की मदद से, ना किताब अकेली निकाल सकती है, ना नबी अकेला निकाल सकता है। और फिर सूरह अल हदीद की आयत नंबर 10 में 57 नंबर की सूरत है, 10 नंबर की आयत है, और ये बहुत ही रेलेवेंट है। अल्लाह ताला फरमाता है, हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही, अल्लाह वो ज़ात है जो नाज़िल करता है अपने बंदे के ऊपर आयात बय्यिनातिन, खुली खुली आयात, लियुख़रिजकुम, ताकि वो तुमको निकाले, मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ, व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफ़ुर रहीम, और यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बहुत ही रऊफ़ और रहीम है। अब रऊफ़ कहते हैं बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, राफ़ा से निकला, यानी वो ऐसी मोहब्बत जो दिल के अंदर धसी हुई है, और रहीम का मतलब है बार-बार रहम करने वाला। तो खुदा तो कहते हैं मैं बार-बार रहम करता हूँ ताकि जब भी तुम अंधेरे का शिकार हो जाओ, तो मैं अपने एक बंदे के ऊपर, अला अब्देही, एक बंदे के ऊपर आयात बय्यिनात नाज़िल करता हूँ, ताकि वो तुमको निकाले अंधेरों से रोशनी की तरफ। मैं क्यों ऐसा करता हूँ?
मैं इसलिए ऐसे करता हूँ कि वइन्नल्लाह बिकुम लरऊफ रहीम, ठीक है लाम ताकीद का लगाया है। जी। वो तो कहता है रहीम हूँ, मैं बार बार रहम करता हूँ, कहते नहीं बार बार नहीं, बस जितना हो रहा उतना काफ़ी है, और नहीं हमारे पास जगह नहीं है। और कैसे कुरान की खुली खुली मुखालफत है, कैसे उसके मुतजाद बातें करते हैं कि खुदा कहता है कि मैं तो रऊफ रहीम हूँ, वो कहते नहीं जी हमें नहीं चाहिए, आपकी राफत नहीं चाहिए, आपकी रहमत नहीं चाहिए, अपने पास रखें आप। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ये 8 नंबर की सूरत है, 25 नंबर की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, यानी मुर्दा कौम को जिंदा करने के लिए। या तो आप कहना कि कौम मुर्दा नहीं है, अगर कौम मुर्दा ना होती तो गांधी साहब अलमौरद ना शुरू करते, मीज़ान ना लिखते, इतने जो काम कर रहे हैं इस वक्त वो ना करते हैं, क्योंकि कौम तो जिंदा है। तो जिंदा को कौन उठाएगा, मुर्दा है तो आपने उठाने का काम किया ना। लेकिन अल्लाह ताला तो कहता है कि इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का जवाब दो जब वो तुम्हें पुकारे ताकि तुमको जिंदा कर दे। फिर एक और बड़ी रेलेवेंट आयत है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 180 है। फरमाया, मा कान अल्लाह हो, और अल्लाह हरगिज़ ऐसा नहीं है, ले यज़र अल मोमिनीना के वो मोमिनों को छोड़ दे, अला मा अंतुम अलैह उस पर जो जिस पर तुम अब हो, हत्ता यहाँ तक के यमीज़ अल खबीसा मिनत तय्यब, यहाँ तक के खबीस को तय्यब से अलग अलग कर दे। यानी मोमिनों की हालत बताई जा रही है कि मोमिनों में खबीस भी हैं और तय्यब भी हैं। इसलिए कहा ना कि खबीस और तय्यब में जो मोमिनीन के अंदर है उनमें तमीज़ करेगा अल्लाह ताला। और करेगा कैसे, वमा कान अल्लाहु युतलियकुम अलल गैब, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम सबको गैब पर इत्ला कर दे। यानी आप कहें जी कि तुम काफिर हो, तुम मुसलमान, देवबंदी कहें बरेलवी काफिर, बरेलवी कहे देवबंदी काफिर, ये कहे सारे मिलकर के शिया काफिर, वो सारे मिलकर के अहमदी काफिर। वो कहें जी हम तैयब हैं, तुम खबीस हो, वो कहें नहीं तुम खबीस हो, हम तैयब हैं। तो खुदा फरमाते हैं, वो मा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब, अल्लाह ताला गैब के ऊपर तुम्हें इत्ला नहीं करेगा। वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसको चाहेगा चुन लेगा। तो आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अजरुन अज़ीम, अगर तुम ईमान लिया और तकवा इख्तियार किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। किसको कहा जा रहा है, मोमिनीन को। खबीस और तैयब कौन होंगे, मोमिनीन में से होंगे ना। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम ऐसी हालत में हो जाओ कि तुम्हारे अंदर खबीस भी हो, तुम्हारे अंदर तैयब भी हो, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा कि चलो जी कोई बात नहीं, मैं क्या करूं। कहता नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये भी नहीं होगा कि मैं तुमको बताऊं कि जी ये फलाना फिरका काफिर है, फलाना फिरका जो है वो सही है, बल्कि मैं अपना एक रसूल चुनूंगा। वो रसूल जो है जो उस पर ईमान लाएगा, जिसने फरमाया ना आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। तो जो ईमान लाएगा वो तैयब, जो ईमान नहीं लाएगा वो खबीस है। और अल्लाह ताला फरमाता है, बाज़ लोग कहते हैं जी कि अच्छा जी ये छोटी सी जमात है, जमात अहमदिया, ये ठीक है, और बाकी सारे 1.5 अरब जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। वो तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-माइदा में आयत नंबर 101 में, कुल इनसे कह दो, ला यस्तविल खबीस व तय्यब, खबीस और तय्यब बराबर नहीं हो सकते, वो लाओ आजबका कसरतुल खबीस, कसरतुल खबीस, चाहे तुम्हें खबीसों की कसरत धोखे में ना डाल दी, चाहे कैसी तुम्हें पसंद ना आए, वो लाओ आजबका कसरतुल खबीस, चाहे खबीस इतने ज़्यादा, तो इतने ज़्यादा हैं, ये सारे ख़राब हैं। और ये छोटी सी जमात है चंद करोड़ की, ये ठीक है, और 1.5 अरब मुसलमान जो है वो सारे के सारे गलत। तो फरमाया फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए अक्लमंदो, यानी अकल से फैसला करें ना कि कसरत जो है ना वो ठीक है, और अकलियत जो है, अक्सरियत ठीक है और अकलियत खराब है। फरमाया अंशु साहब फत्तकुल्लाह है। 20 आयत हो गई, मैं काउंट करता जा रहा हूँ। जी। तो और ये इसमें इसमें बस उनको मैं जवाब अभी देने के काबिल छोड़ें। इसमें वो मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये हदीस है सही बुखारी में, किताब हदीस अम्बिया में, जी, हज़रत ज़ैनब बिन्त जाश से ये है मरवी। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मेरे घर में दाखिल हुए, बड़े परेशान थे, और कहा कि आज ऐसे, उंगली से इशारा करके कहा कि आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह क्या वो हलाक होंगे
जबकि हम में सालिहीन भी होंगे। आपने फरमाया हाँ, काला नाम इज़ा कसरल खबसो, जब खबीसों की कसरत हो जाएगी। तो खबीसों की कसरत होगी तो उस वक़्त लोग हलाक होंगे। फिर एक और आयत है, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 104 है, फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को सारे मिलकर थाम लो और तफरका मत करो। वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमत का ज़िक्र करो अपने ऊपर, इज़ कुंतुम, जब तुम थे आदान दुश्मन, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, बस उसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम उसकी नेमत से भाई-भाई बन गए। व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर खड़े थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, खुदा ने तुम्हें वहाँ से बचा लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयात को खोल-खोल कर बयान करता है ताकि शायद तुम हिदायत पा जाओ। लअल्लकुम तहतदून। तो अब ये देखें कि सारे हालात इस वक़्त हैं। दानिश्वर, जज, सहाफ़ी, सियासतदान, उलमा तक वो ये कहते हैं कि हम आपस में दुश्मन हैं, आग के गड्ढे के किनारे पर खड़े हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ना जान महफूज़ है, ना माल महफूज़ है, ना इज़्ज़त महफूज़ है। तो ये जब ऐसे होता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, कैसे ठीक करता है? एक रसूल के ज़रिए। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को कहा। बुखारी किताबुल मगाज़ी में ये हदीस है कि जब अंसार को शिकवा हुआ एक बात का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इकट्ठा सल्लल्लाहु किया एक जगह पे और ये फरमाया कि या माशरल अंसार, ए अंसार के गिरोह, अलम अजिदकुम अलम अजिदकुम ज़ुल्लालन, क्या मैंने तुमको गुमराह नहीं पाया? फ़हदाकुमुल्लाहु बी, बस खुदा ने मेरे ज़रिए तुमको हिदायत दी। व कुंतुम मुतफर्रिकीना, और तुम तो मुतफर्रिक थे। फ़अल्लफ़कुमुल्लाहु बी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाली मेरे ज़रिए। हुँ, हुँ। व व आलतन, और तुम गरीब थे, फ़अग़नाकुमुल्लाहु बी, और अल्लाह ने मेरे ज़रिए तुमको मालदार कर दिया। इसका मतलब क्या है? वो जो आयत है ये उसकी बिल्कुल तफ़सीर है। उसमें क्या था? तुम दुश्मन थे, हज़ूर क्या फ़रमाते हैं कि तुम दुश्मन थे, तुम गुमराह थे, तुम मुतफ़र्रिक़ थे, तुम गरीब थे। ये खुदा ने जो हिदायत दी है, जो अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम हुआ है, वो जो आग के गड्ढे के किनारे से बचाया, मेरे ज़रिए बचाया है। आज वो सारे काम, सारी हालात मुसलमानों पर वारिद हो चुके हैं और कहते नहीं हमें ज़रूरत नहीं, हम खुद ही ठीक हो जाएँगे। अगर खुद ही ठीक होने होते तो पहले ना हो जाते। अल्लाह ताला किताब नाज़िल कर देता, वो कह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ये पढ़ी है किताब, इसको पढ़ो और तुम फलाह पा जाओ। तो ये जो आयत है, जो आपने सवाल किया था, माज़ है कि थोड़ा-सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने कहा कि ये आयत जो है इसको अभी मैंने 1-2 चीज़ें छोड़ दी हैं इसमें, लेकिन ये कि कुरान और हदीस की रूह से जितनी भी खराबियाँ, जितनी भी वजूहात पैदा होती थीं साबका अक़वाम में, अल्लाह ताला उनको दूर करता था अम्बिया के ज़रिए। ये सिर्फ़ हिदायत देने के लिए नहीं अल्लाह ताला भेजता, हिदायत भी देने के लिए भेजता है, इत्माम हुज्जत के लिए भी भेजता है। लेकिन ये सिर्फ़ 2 काम हैं। ये जो हुँ। बाकी काम मैंने आपको बताए हैं, वो कौन करेगा फिर? जबकि हालात आपके ऊपर वारिद हो चुके हैं सारे। चलिए, अंस साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी आयात भी आपने सामने रखी हैं कुरान करीम की, और आपने तो अहादीस भी सामने रख दी, वाक़यात भी बयान कर दिए। तो हसन इलियास साहिब, आप पर भी और वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, संजीदा लोग हैं, मकालमा चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो देखिए आपके सामने तो कुरान करीम रखा गया है और वो आयात आपके सामने बयान की गई हैं। हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि आपके पास अगर जवाब नहीं भी है, एक तो अदल से काम लें, ये बहुत ज़रूरी है। एक जो अंदर नफ़रत है उसको ख़त्म करें, और अगर आपके पास जवाब नहीं भी है तो आप इसको लेकर जाएँ अपने उलमा के पास, बल्कि हसन इलियास साहब के पास भी लेकर जाएँ और गांधी साहब के पास भी लेकर जाएँ और उनसे कहें कि भई ये तो अहमदी आयतों पे आयतें रखते चले जा रहे हैं। वो 3 मुरब्बियान ने भी प्रोग्राम किया अंसार साहब, तो वो भी आयत पे आयत, आयत पे आयत पे रखते जा रहे थे कुरान करीम अभी की। आपने कहा अदल से काम लें, अदल से काम लें। अदल से, अच्छा मुझे समझा, मैं समझा कि आप कह रहे हैं अकल अकल से काम लें। नहीं, नहीं, अदल से कहा है। अच्छा, अकल से भी काम लेना चाहिए वैसे। अक्ल से भी काम कहा है लेने ना हैं। फला ताक़िलून, तुम अकल नहीं जी, करते। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा तफ़सीली जवाब हुआ, लेकिन बात यहाँ पे अंसर साहब ख़त्म नहीं हो रही। मेरे जी, पास एक और बड़ा बुनियादी सवाल है, लेकिन उस सवाल के लिए फिर हम इसी महफ़िल को जारी रखेंगे, लेकिन वीडियो के एक और हिस्से में।
اور وجہ اس کی پھر سے بتا دوں کہ یہی ہے کہ ایک-ایک سوال آپ کے سامنے آئے اور اس سوال کا جواب ہو اور آپ اس سوال کے جواب کو دیکھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک اور بات پر چلے جائیں اور ایک اور سوال آپ تک ایک ہی ویڈیو میں پہنچا دیں۔ تو جڑے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک صفی راجپوت اور انصر رضا صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔